بہاول نگر میں ڈی سی آفس کے درجہ چہارم کے ملازم کلو خان کے گھر نیب کے چھاپے کا معاملہ۔ درجہ چہارم کا ملازم کلو خان 20 کے قریب قیمتی پراپرٹیز کا مالک نکلا۔ نیب نے ڈپٹی کمشنر کو کلو خان کی تمام پراپرٹی کو منجمد کرنے کے لیے خط لکھ دیا۔ خط کی کاپی روہی کو موصول ہو گئی۔ بہاول نگر ڈپٹی کمشنر آفس میں نائب قاصد کلو خان کی کروڑوں روپے کے اثاثے منظر عام پر آ گئے۔ نیب کی جانب سے نائب قاصد کلو خان کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ نائب قاصد کلو خان کروڑوں روپے کے سونے، پرائز بانڈز اور کرنسی کے ساتھ کروڑوں روپے کی قیمتی جائیدادوں کا بھی مالک نکلا۔ درجہ چہارم کے ملازم کلو خان کی پراپرٹیز کی لسٹ بھی سامنے آ گئی۔ ملزم کلو خان نے متعدد جائیدادیں بے نامی طور پر اپنے خاندان کے افراد اور عزیز و اقارب کے نام لگوا رکھی ہیں۔ نیب نے نائب قاصد کلو خان اور اس کے خاندان کے افراد کے نام جائیدادوں کو منجمد کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کو خط لکھ دیا۔ روہی نے نائب قاصد کلو خان کی جائیدادوں کے متعلق نیب کے لکھے گئے خط کی کاپی حاصل کر لی۔ نائب قاصد کلو خان اس کے خاندان کے افراد اور عزیز و اقارب کے نام 20 سے زائد قیمتی کمرشل دکانیں، مکان اور پلاٹس ہیں۔ نیب کی جانب سے جاری کردہ کلو خان کی پراپرٹی کی مالیت 30 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ نیب کو مطلوب درجہ چہارم کا ملازم تاحال مفرور ہے۔ چھاپے کے دوران نیب نے کلو خان کے بھائی رشید خان کو گرفتار کیا تھا۔ نیب کے زیر حراست رشید خان بھی ڈی سی آفس میں درجہ چہارم کا ملازم ہے۔ حاصل پور میں غیر منظور شدہ ہاؤسنگ کالونیز کی بھرمار ہے۔ شہری 31 غیر منظور شدہ کالونیز میں لٹنے پر مجبور ہو گئے۔ مقامی انتظامیہ نے غیر منظور شدہ کالونیز کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے لیے کمر کس لی۔ سکھ چین، مون ایوینیو، ماڈرن سٹی، کمر بلاک، لالازار کینال کالونیز شامل ہیں۔ ڈریم سٹی، سبززار، توحید گارڈن، سٹی گارڈن، رامے سٹی 2، خیابان علی، ڈیفنس بلاک، رفیق گارڈن شامل۔ پارک ویو، احمد سٹی، توحید گارڈن بہاڑی روڈ، گلشن حاکم بھی شامل ہیں۔ اذان سٹی، کینال سٹی، اعجاز گارڈن، علی ولاس، ماڈرن سٹی، الکریم، العزیز ٹاؤن، بسرا ٹاؤن، الفضل، المدینہ اور جوہر ٹاؤن بھی شامل ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کامران اشرف کا کہنا ہے کہ میونسپل کمیٹی کے این او سی کے بغیر رجسٹری نہیں ہوگی۔ غیر منظور شدہ کالونیز کے خلاف ڈی جی پی آر کو تحریری لیٹر بھیج دیا ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی منظوری کے لیے کوئی پروسیس نہیں کرایا گیا۔ شہریوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کالونیز میں خرید و فروخت نہ کریں۔ غیر قانونی قرار دی جانے والی ہاؤسنگ اسکیموں میں تاحال پلاٹس کی خرید و فروخت جاری۔ کمشنر بہاولپور آصف اقبال چودھری نے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ بہاولپور میں ہاؤسنگ کالونیز مافیا بے لگام ہو گیا۔ غیر قانونی ڈکلیئر کی جانے والی ہاؤسنگ اسکیموں میں تاحال پلاٹس کی خرید و فروخت جاری ہے۔ کمشنر بہاولپور آصف اقبال نے ڈپٹی کمشنر، چیف ایگزیکٹو میٹروپولیٹن کارپوریشن اور دیگر افسران پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر بہاولپور مظفر خان سیال، چیف ایگزیکٹو میٹروپولیٹن کارپوریشن محمد شفیق اور دیگر افسران کو فوری کارروائی کا حکم دے دیا۔ ابھی آپ کو بتاتے ہیں کمشنر ڈی جی خان ساجد ظفر ڈال کہتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں 50 ملین کے پروجیکٹس تکمیل کی جانب گامزن ہیں۔ جلد ہی پول ڈاٹ کو بھی ٹریفک کے لیے مکمل کھول دیا جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محسن الملک۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ساجد ظفر ڈال نے روہی سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ ڈیرہ غازی خان میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں تقریباً 50 ملین کی لاگت سے ترقیاتی کام جاری ہیں، جنہیں جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ تقریباً آدھے بلین کے تو سڑکیں جو ہے وہ شوگر سیس سے مظفر گڑھ ضلع میں جو ہے وہ 1 ماہ پہلے ہم نے اپروو کی تھی، جن پہ کام اب شروع ہو چکا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ بہت سارے جو ملٹی فیریس قسم کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں۔ کمشنر ساجد ظفر ڈال نے کہا کہ وہ کارڈیولوجی منصوبے کو خود مانیٹر کر رہے ہیں، جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال بننے جا رہا ہے۔ منصوبے پر دن رات کام جاری ہے، اسے بھی ریکارڈ مدت میں مکمل کر لیا جائے گا۔ پول ڈاٹ کا منصوبہ پایا تکمیل کی طرف گامزن ہے، جلد ہی پول ڈاٹ منصوبے کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ پروجیکٹس جو ہے وہ تقریباً ہر سیکٹر کے پروجیکٹس ہیں، اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ ہیلتھ، تعلیم، اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں، جن میں اگر آپ میگا پروجیکٹس کی بات کریں تو یہاں پہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی بھی بن رہا ہے۔ یہاں پہ ایک بہت ڈی جی خان کی جو میں سمجھتا ہوں ٹریفک کے مسائل کے لیے ایک پول ڈاٹ پہ جو ہے وہ اس کو ری انجینئر کر رہے ہیں۔ کمشنر ساجد ظفر ڈال نے کہا کہ کونسا اور بھارتی میں ترقیاتی منصوبے 50% مکمل ہو چکے ہیں۔ منصوبوں میں فنڈز کی بھی کوئی رکاوٹ سامنے نہیں آ رہی۔ کیمرامین عثمان نواز کے ساتھ محسن الملک، بیورو چیف ڈی جی خان۔ سیکریٹری ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ لیاقت علی چٹھا کا شاہ شمس پارک کا دورہ۔ پارک میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں علی ریاض۔ سیکریٹری ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ، بہرہاٹی کی ترقیہ اور شامک شہر پارک میں
آج میں نے ان کی باتیں سنی ہیں تو ٹھیکیدار بھی اس پہ اچھے ہمیں مل گئے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے 4-5 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ اس پارک کے اندر بڑی انقلابی تبدیلی آئے گی، اور جس طرح یہ ملتان شہر کا دل ہے اور صبح اور شام کے وقت جتنی دنیا یہاں پہ واک کرنے کے لیے آتی ہے، اب لیڈیز کے لیے علیحدہ ایک ٹریک بن جائے گا، جینٹس کے لیے علیحدہ ہے، فیوچر میں اس میں ایک بہت بڑا ہم ٹریک بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ DGPHA کا کہنا تھا کہ پارک کے فنڈز کو بہتر انداز سے استعمال کریں گے، پارک کو جدید خطوط پر استوار اور خوبصورت لینڈسکیپنگ کریں گے۔ لیڈیز کے لیے الگ سے ایک جاگنگ ٹریک اور اس کے ساتھ اندر ایک ہماری پرانی اسٹرکچر کھڑا ہوا تھا، ہم اس کو ڈیمالش نہیں کر رہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ اسی کو ہم ایک لیڈیز جم کے طور پر یوز کیا جائے، اور اس کے لیے ہم کہیں نہ کہیں سے ہم ایکسپریشن آف انٹرسٹ لے کے تو وہ کسی پارٹی کو دے گے تاکہ ایک اچھی فیسلٹی جو ہے وہ لیڈیز کے لیے یہاں پہ ڈیولپ ہو جائے۔ DGPHA کا کہنا تھا کہ شاہ شمس پارک کا ترقیاتی کام آئندہ مہینوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ رخ کرتے ہیں شہر اولیا کا۔ ملتان کی اہم شاہراہ طارق روڈ رات ڈھلتے ہی تاریکی میں ڈوب جاتی ہے۔ سڑک پر لائٹس نہ ہونے کے باعث حادثات بھی معمول بن چکے ہیں، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان کی اہم شاہراہ طارق روڈ ہے، یہ رات ڈھلتے ہی تاریکی میں ڈوب جاتی ہے۔ سڑک پر لائٹس نہ ہونے کے باعث حادثات بھی معمول بن چکے ہیں، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ملتان کی روڈ ہے، اہم شاہراہ ہے طارق روڈ، رات ڈلتے ہی تاریکی میں ڈوب جاتی ہے۔ سڑک پر لائٹس نہ ہونے کے باعث حادثات بھی معمول بن چکے ہیں۔ مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وسیم شہزاد نے۔ وسیم، بتائے گا سڑک پر لائٹس نہیں ہیں، کیا وجہ ہے، انتظامیہ کیا کہتی ہے؟ جو ہے وہ انتظامیہ کو آج سے نہیں گزشتہ 3-4 روز سے جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے، لیکن انتظامیہ ہے کہ جس کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ شہر اولیا کی مین شاہراہ ہے اور اس کا مین شاہراہ میں شمار ہوتا ہے، جس کو طارق روڈ بھی کہا جاتے ہیں، لیکن اس کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک تو روڈ پہلے ہی تھوڑا بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس سے حادثات اور واردات جو ہے وہ بھی معمول بنتی جا رہی ہے۔ میرا کیمرہ مین ہارون آپ کو دکھا سکے تو یہ پیچھے بیک سائڈ کا ایریا ہے جو مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبا ہو چکا ہے۔ جیسے ہی شام ڈھلتی ہے، رات ڈھلتی ہے، تو یہاں پر جو شہری ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی موٹر سائیکل اور اپنی کارز کی لائٹس کی وجہ سے جو ہے وہ صرف اس روڈ کا گزر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی چارہ جوئی یہاں پر نہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کے اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ فی الفور اس مسئلے کو دیکھے اور اس مسئلے کو حل کرے تاکہ رات کے وقت بھی شہریوں کو ریلیف مل سکے۔ جی، شہریوں کا کہنا ہے کہ مسئلے کو حل کیا جائے، لائٹس خراب ہیں، انتظامیہ خاموش ہے۔ وسیم شہزاد آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ میاں والی میں صفائی کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ڈیلی ویجز پر سینیٹری ورکرز رکھے جائیں گے۔ ڈی سی عمر شیر چٹھا نے بتایا کہ 15 کروڑ روپے کی مشینری خرید لی گئی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اختر مجاز۔ میاں والی کی صفائی کے لیے 50 روز کے لیے ڈیلی بیسس پر سینٹری ورکرز بھرتی کیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا نے بتایا سینٹری ورکرز کی کمی کے باعث صفائی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ میونسپل سروسز میں بہتری لانے کے لیے 15 کروڑ روپے کی مشینری خریدی گئی ہے۔ ہم نے جدید مشینری خریدی ہے میاں والی میں، پہلی دفعہ تقریباً 15 کروڑ روپے کی مالیت سے ہم نے گاربیج کمپیکٹر، ٹریکٹر ٹرالیز، نئے لوڈر رکشاز جو کہ گلیوں میں جا کے مکینیکلی ساری صفائی کرتے ہیں، روڈ کلینرز، وہ سارے آلات ہم نے خریدے ہیں۔ انشاءاللہ گورنمنٹ بہت جلد نئی بھرتیوں کی بھی ہمیں اجازت دے گی اور آپ دیکھیں گے کہ میونسپل سروسز مزید بہتر ہو جائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا نے بتایا کہ کلین اینڈ گرین مہم کے تحت سینٹری ورکرز سے صفائی کا نظام بہتر ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ میونسپل کمیٹی اور ٹاؤن کمیٹیز میں سینٹری ورکرز کی مستقل بھرتی کے لیے حکومت کو خط لکھا جا چکا ہے، عنقریب مستقل بھرتیاں بھی کی جائیں گی۔ گورنمنٹ آف پنجاب کلین اینڈ گرین پنجاب کے تحت ہمیں اسپیشل پرمیشن دیتی ہے 50 دن کے لیے عارضی ملازمین اور خاکروب بھرتی کرنے کی، اور ان ڈیلی ویجرز کے ذریعے شہروں کے معاملات ہم بلدیہ حدود میں مزید بہتر کر رہے ہیں۔ تو وہ جو ہی اجازت آ جاتی ہے تو ہمارے 2-3 ماہ کے لیے معاملات بہت آپ دیکھیں گے کہ تمام میونسپل سروسز مزید بہتر ہو جائیں گے۔ ڈی سی نے بتایا کہ شہر کی صفائی کے لیے ورکرز 2 شفٹوں میں کام کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। 2 रोज बाद एलपीजी गैस फिर 10 रुपए महंगी हो गई। 120 रुपए में मिलने वाली एलपीजी गैस 130 रुपए में फरोख्त होने लगी। बहावलपुर के शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एलपीजी एक बार फिर महंगी हो गई। 2 रोज बाद कीमत में 10 रुपए का इजाफा हो गया। 120 रुपए किलो वाली एलपीजी 130 रुपए में फरोख्त होने लगी। आवाम ने रेट्स कम करने का मुतालिबा कर दिया। रोजाना ही बढ़ रहा है, हम क्या करें, हम गरीब बंदे हैं, हम कहाँ जाएं। काम करें तो हम गरीब चाहिए, हम किधर जाएं। सर्दियों से कबल ही गैस की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया। आवाम ने रोजाना की बुनियाद पर गैस की कीमतों में इजाफा रोकने का मुतालिबा कर दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रही, आला हुकाम मामले का नोटिस ले। हुकूमत की तो कोई समझ नहीं हमें आ रही है। ये हम गरीब लोग हैं, हम क्या करें, कहाँ जाएं। ये तो दिन ब दिन महंगाई इतनी हो रही है। ये गैस जो है, गैस पे हमने अपने घर का चलाना है चूल्हा, और लकड़ी बालन तो हमें मिलता नहीं है। शहरियों ने एलपीजी गैस की कीमतें कंट्रोल करने के लिए बड़े डीलर से फौरी मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया है। कहते हैं हुकूमत हर सूरत गैस की कीमतें कंट्रोल करे। सर्दियां शुरू होने से पहले ही अंडों की कीमतों में इजाफा हो गया। हुकूमत की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक अंडे के रेट में 1 रुपए का इजाफा कर दिया गया। हुकूमती रेट 159 जबकि मार्केट में अंडे 190 के दरमियान फरोख्त होने लगे। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इब्राहिम। हुकूमती रेट लिस्ट के मुताबिक अंडों के रेट में फी दर्जन 1 रुपए का इजाफा कर दिया गया। मार्केट में अंडे 190 रुपए फी दर्जन पर फरोख्त होने लगे हैं, जिस पर शहरी परेशान दिखाई देते हैं। अगर बाहर से हमें आइटम खुराक चीज सही मिलेगी तो हमें इंशाल्लाह अंडा भी सही रेट पे मिलेगा, और कुछ भी नहीं है। और कोरोना की वजह से हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं, इसलिए अंडा महंगा, और अंडा 13-14 रुपए मजीद इसके बढ़ने के चांस हैं, कम के चांस नहीं है। शहरियों का कहना है कि अंडे रोजमर्रा की अहम जरूरत है। अंडों की कीमत के बढ़ने पर काम को नोटिस लेने की जरूरत है। अभी बहुत महंगाई हो गई, आगे तो फिर मौसम है, देखो पता नहीं क्या बनेगा। गवर्नमेंट से यही अपील है कि कोई कंट्रोल किया जाए महंगाई पे। अंडे तो दिन ब दिन बच्चों की जरूरत है, महंगाई बहुत हो गई है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को अंडों की कीमतों को कम कराना चाहिए ताकि आने वाले सर्द मौसम में शहरी इसका इस्तेमाल करने में परेशान ना हो। कैमरामैन रिजवान के साथ इब्राहिम, रोही, मुल्तान। वजीर आजम ने महंगाई के खिलाफ नोटिस क्या लिया। अंडों की कीमत में रोजाना इजाफा होने लगा। रोजाना 5 रुपए फी दर्जन अंडों की कीमत बढ़ने पर बहावलपुर में फी दर्जन कीमत 170 रुपए तक जा पहुंची। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सर्दी शुरू होने से कबल ही अंडे आवाम की पहुंच से दूर होने लगे। अक्टूबर के महीने में ही अंडे 170 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। दुकानदारों का कहना था कि रोजाना 5 रुपए फी दर्जन अंडों की कीमत में इजाफा हो रहा है। पिछले साल जो है ना वो रेट था, इस मौसम में था 80 रुपए 90 रुपए दर्जन था, और अब तो 170 रुपए हो चुके हैं। हर रोज 5 रुपए बढ़ रहे हैं, 5 रुपए बढ़ रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि ये महंगाई कंट्रोल मैंने खुद देखना है, खुद कंट्रोल करूंगा। ठीक है, किसी चीज पे कोई कंट्रोल नहीं है। दुकानदारों का कहना था कि गुज़श्ता साल इसी मौसम में 90 रुपए फी दर्जन अंडे फरोख्त हो रहे थे। गुज़श्ता सर्दियों में अंडों की ज्यादा से ज्यादा कीमत 140 रुपए फी दर्जन तक गई थी। शहरियों का कहना था कि कुल अंडे 165 रुपए फी दर्जन खरीदे, आज 170 रुपए खरीदना पड़े। ये साथ ये दावा करेंगे कि ये कुछ महंगाई में थोड़ा ध्यान दें। मैं कल अंडे 165 रुपए ले गया हूँ, आज 170 रुपए हुए अंडे। उन्होंने कहा था मैं नोटिस लूंगा, उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया अभी तक। रोजाना बढ़ रहे हैं रेट्स इनके। शहरियों का कहना था कि महंगाई का नोटिस तो ले लिया गया मगर चीजें सस्ती नहीं हो रही। इंतजामिया का अशिया की कीमतों पर किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं रहा। हुकूमत की नाअहली रहीमिया खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर 21 रोज से चीनी गायब। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान के शहरियों के लिए यूटिलिटी स्टोर से चीनी खरीदना ख्वाब बन गया। जिला भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर 21 रोज से चीनी गायब है। शहरियों का खाली हाथ लौटना मामूल बन गया है। शहरी कहते हैं हुकूमत नाकाम हो गई है, मजबूरन ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर है। नहीं, चीनी इधर नहीं है। मैं चीनी लेने इधर आया था, लेकिन चीनी जो है ना वो स्टॉक खत्म है। अब जो है ना मैं जो है बाजार जाऊंगा तो वहाँ तो बहुत महंगी पड़ेगी। उधर से 105-10 की जो है ना वो मिल रही है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालिबा किया है। डेरा गाजी खान यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी नायाब। चीनी और आटा यूटिलिटी स्टोर्स पर न मिलने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा नायाब हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा न मिलने के बाद शहरी खाली हाथ मायूस लौटने लगे। आटा पिछले माह था, इस माह है ही नहीं आटा। तकरीबन महीने से ऊपर, यार ये 11-12 तारीख हो गई, नहीं है अब तक आटा आया ही नहीं है। बेचारे लोग परेशान हो गए, वापस चला जाता।
शहरियों का कहना था कि एक जानिब हुकूमत कहती है कि आवाम को रिलीफ देंगे, दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा मिल नहीं रहा, जबकि आम मार्केट में रेट आसमान पर पहुंच चुके हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया एक्शन ले और यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी फराहम किया जाए। बहावलपुर में आटे और चीनी की कीमतों में इजाफा जारी है। चीनी 95 रुपए किलो से बढ़कर 100 रुपए किलो हो गई। 50 किलो के थैले पर 150 रुपए इजाफा कर दिया गया। आटा भी 67 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा है। बहावलपुर में आटे और चीनी की कीमतों में इजाफा जारी है। चीनी 95 रुपए किलो से बढ़कर 100 रुपए किलो हो गई। 50 किलो के थैले पर 150 रुपए इजाफा कर दिया गया। आटा भी 67 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। 2 रोज कबल आटा 65 रुपए किलो फरोख्त हो रहा था। 4550 का आता, अब 4750 का आ रहा है। पहले हम 150 रुपए थैला बढ़ा दिया है। पहले हम 95 रुपए किलो बेचे थे, अब हम 98-100 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे मिलेगी वैसे बेचेंगे। गरीब आदमी चीनी कहाँ से ले, 100 रुपए किलो चीनी होगी है, कम से कम 50 रुपए होनी चाहिए ताकि हर बंदा तो ले। आटा होना चाहिए 40 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए। अब 70-80 रुपए किलो आटा है, कहाँ से बंदा खाएगा। हुकूमत की जानिब से महंगाई पर आवाम ने इसे आड़े हाथों लिया। आवाम का कहना था कि आटा, चीनी और घी सब कुछ तो मुल्क में महंगा कर दिया गया है, क्या खाएं। आवाम ने रूही से गुफ्तगू करते हुए शिकवों के ढेर लगा दिए। जनाब, हुकूमत के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये हुकूमत जो है फेल हो चुकी है। इस हुकूमत को अब अपने घर जाना चाहिए। ये हुकूमत नहीं कर सकती, इसको चलाने नहीं आ रहा। आवाम का कहना था कि हुकूमत आवाम की परेशानी को समझते हुए उनके मसाइल हल करे ताकि उनकी मुश्किलात कम हों। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का कहना है कि जनूबी पंजाब में गंदम की बिजाई के लिए वाफिर बीज मौजूद है। काश्तकार बेहतर पैदावार के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर तक काश्त मुकम्मल कर लें। बिजाई से पहले बीज को जहर लगाने से बेहतर नतीजे आएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं रजा मलिक। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का गंदम की बिजाई सीजन के हवाले से रूही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जनूबी पंजाब में गंदम की बिजाई के लिए वाफिर बीज मौजूद है। सीड कारपोरेशन और भावलपुर गंदम तहकीकी इदारे से बीज फराहम किया जा रहा है। इस साल जो हमारे पास बीज मौजूद है वो हमारे पूरे साउथ पंजाब के लिए मोर देन सफिशिएंट है, बल्कि हो सकता है बाकी जगहों के लिए भी यहाँ, क्योंकि आपको पता है कि सारा 80% बीज जो है वो हमारे एरिया में तैयार होता है पूरे पाकिस्तान के लिए। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब का कहना था कि मुल्क के दीगर इलाकों में भी जनूबी पंजाब से गंदम का बीज भिजवाया जाता है। प्राइवेट सेक्टर की तरफ से मार्केट में फराहम की जाने वाली बीज की क्वालिटी को मॉनिटर किया जा रहा है। काश्तकार बेहतर पैदावार के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर तक काश्त मुकम्मल कर लें। में हमारा लास्ट ईयर का तजर्बा ये बताते हैं कि उसमें बीमारी ना होने के बराबर है, और अगर आपने 30 तक भी ले गए तब भी बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन 30 नवंबर के बाद दिसंबर के महीने में जैसे लेट करते जाएंगे वैसे बीमारियां बढ़ती जाएंगी, रस्ट बढ़ता जाएगा और आपकी यील्ड कम होती चली जाएगी। साकिब अली अतील का कहना था कि बिजाई से पहले बीज को जहर लगाने से बेहतर नतीजे आएंगे। काश्तकार बर्वक्त बिजाई करके फसल को ब्लूरेस्ट और दीगर बीमारियों से बचा सकते हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ रजा मलिक, मुल्तान। जामपुर के नवाही इलाका मोहम्मदपुर दीवान में किसान बोर्ड राजनपुर के ज़ेरे तमाम 5 रोज़ा एहतजाजी कैंप लगाया गया। किसान बोर्ड राजनपुर के ज़िला चेयरमैन अलायार कुराई ने खुद को जंजीरों में जकड़कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। रिपोर्ट करेंगे जावेद इकबाल। रामपुर के नवाही इलाका मोहम्मदपुर दीवान में 2 नंबर ज़रई अद्वियात और महकमा ज़राअत के खिलाफ किसान बोर्ड राजनपुर की जानिब से एहतजाजी कैंप लगाया गया। किसान बोर्ड राजनपुर के ज़िले चेयरमैन अल्लायार कुराई ने खुद को जंजीरों में जकड़कर अपना एहतजाज नोट कराया। मुजाहिरीन का कहना था कि ज़रई अद्वियात माफिया किसानों को गिरफ्तारी की धमकियां दे रहे हैं। ही टाइम किसान का सारा कारोबार है, असा ही टाइम मकरूज थी चुकूं, लेकिन साकू लुट की थे दवाई पैक करा ले वो करदा ही कर देते। वो हम सारे को धमकियां दे रहे ने, असा थाने बिला करें थे, असा कुटवा करें थे, हाथ कड़े पवाते, असा पैसे गिनसूं, माल छिके सूं, असा हर किस्म की कड़ी माफ न करे सूं। किसान बोर्ड के ज़िले सदर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से किसानों को बड़ी उम्मीदें थी, मगर वो उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। नाकिस ज़रई अद्वियात और नाकिस बीज की भरमार है। इमरान खान नए पाकिस्तान का नारा लेकर आए थे और किसानों को बड़ी उम्मीद थी ये मजलूम लोगों का जो है ना सरपरस्त बनेगा, लेकिन इसने जो अभी तक ये हमें मालूम हो रहा है कोई न करप्शन फ्री हुआ है पाकिस्तान, न कोई लुटेरे को पकड़ा गया है सिवाय टीवी मजाकरे में। किसान बोर्ड के नायब सदर जलब गबूल ने कहा कि किसानों को सस्ती खाद और बीज फराहम न किया गया तो 25 अक्टूबर के बाद भरपूर एहतजाज करेंगे। 5 अक्टूबर तक अगर ये ज़राअत के हालात ठीक न किए गए, किसान का अजाला न किया गया, उनको सस्ती खाद बीज
क्यों जो गंदम काश करण का मौसम आ गए सस्ती खाद बीज ना दी गई जरा ही टाइम सारी गंदम असा जी 1300 रुपए दी है फूड इन लाती थी फ्लोर मिल वाले को देंगे पैन मगर किसान वास्ते कह नहीं जरा किसान देंगे यो करेंगे सारा मुतालबा है फिल फौर गंदम में जरी सस्ते रेट से किसाने को बराह रास्त किसाने को दी वजे। महकमा ज़राअत राजिनपुर के ऑफिसर राहित राशिद का कहना है कि किसानों के नुकसान की मुकम्मल तफसीलात वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की जाएंगी ताकि किसानों के दुखों का मदावा हो सके। आपको बताएं कि रवां साल कपास की फसल बेहतर न होने की वजह से चुनाई करने वाली खवातीन परेशान हैं। खवातीन का कहना है कि रवां सीजन में खराब फसल की वजह से सिर्फ 10 किलो तक ही कपास चुन सकी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अतर लाशारी। रवां साल कपास की काश्त और पैदावार में कमी ने जहां काश्तकार और टेक्सटाइल सेक्टर को मुतासिर किया, वहीं कपास की चुनाई करने वाली खवातीन भी मुश्किलात का शिकार हुई हैं। खवातीन का कहना है कि गुज़िश्ता साल रोजाना 2 किलो तो उत्ते का नहीं वध दिया सारिया चोनियां 10 किलो तो उत्ते का नहीं वध दिया जिथे डूडू मान ढेढे मान चोंदे हन उठे हुन 10 किलो क्या पूरी थी 10 किलो। सरायकी वसेब में इस वक्त कपास की चुनाई का अमल जारी है। काश्तकारों का कहना है कि पैदावार इतनी कम है कि अखराजात भी पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतर लाशारी, बहावलपुर। रहीमिया खान में ग्लोबल फर्टिलाइजर दिन की मुनासबत से खादों के इस्तेमाल बारे आगाही सेमिनार हुआ। यूरिया खाद के साथ साथ पोटाश, फास्फोरस और माइक्रो न्यूट्रिशन के इस्तेमाल की अहमियत को बयान किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम सिद्दीक। आबादी के तनासुब से ज़रिया अजनास की जरूरत पूरा करने के लिए पैदावारी हदफ के हुसूल के लिए कीमियाई खादों का इस्तेमाल नागुज़ीर हो चुका है। आलमी खादों के दिन मनाने का मकसद भी किसानों में खादों के इस्तेमाल की अहमियत को उजागर करना है। रहीमिया खान में मुनक्किदा सेमिनार में किसानों को यूरिया खाद के इस्तेमाल के साथ साथ दूसरी खादों पोटाश, फास्फोरस और माइक्रो न्यूट्रिशन के बारे बताया गया। की बुनियाद पे जिस रफ्तार से हमारी तकरीबन 3% की रफ्तार से आबादी ग्रो कर रही है, तो अगर ये फर्टिलाइजर्स ना होते और ये इंडस्ट्री इस तरीके से पाकिस्तान में इन्वेस्ट न कर रही होती तो आज आप मुल्क में खुराक का बहरान पैदा हुआ होता। डायरेक्टर ज़राअत चौधरी इम्तियाज अहमद का कहना था कि जमीन को उसकी माहियत के मुताबिक खाद देनी चाहिए। एक ही खाद का बार बार इस्तेमाल जमीन की ताकत को खत्म भी कर सकता है। हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो यूरिया जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, उसके मुकाबले में फॉस्फेट और पोटाश जो है वो कम इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से हम वो फसलात के पोटेंशियल हासिल नहीं कर सकते जो हमें रिसर्च वाले बताते हैं। किसानों को खादों का इस्तेमाल अपनी जमीन की माहियत और इसमें मौजूद कमी को मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए। खादों का बेजा इस्तेमाल जमीन की ताकत को मुतासिर करके फसल को खराब भी कर सकता है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीमिया खान। उन्होंने पुलिस अफसरान के साथ बढ़ते हुए जुर्म के हवाले से मुलाकात की। उनका कहना था कि थानों में गरीब और बेसहारा अफराद की दाद रसी को यकीनी बनाया जाए। आरपीओ ने अफसरान को साइलिन के साथ इंसाफ करने की हिदायत की। इजलास में डीपीओ एहसानुल्लाह चौहान, एसपी इन्वेस्टिगेशन बिहाड़ी मतीउल्लाह खान और जिला भर के एसएचओ शरीक हुए। इजलास से खिताब करते हुए रीजनल पुलिस ऑफिसर का कहना था कि पुलिस अफसरान सिफारिश और दबाव से बालातर होकर काम करें। उधर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बिहाड़ी सुलेमान बेग की बुरेवाला आमद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुलेमान बेग ने अहाता कचहरी में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुलेमान बेग ने अहाता कचहरी में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। एडिशनल सेशन जज चौधरी जफर इकबाल, वसीम मुबारक, सलीम इकबाल, शौकत जावेद, चौधरी शहजाद अनवर, सीनियर जज सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी चौधरी नासिर महमूद सिविल जज समेत दीगर जजेस साहिबान के अलावा सिविल नादर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिहाड़ी जमील मसीह, नायब नादर बुरेवाला, मियां अब्दुल गफूर और दीगर भी मौजूद थे। पेफ पार्टनर्स तहसील जामपुर की जानिब से मुतालबात के हक में ट्रैफिक चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पेफ से मुंसलिक स्कूल्स के हेड्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद इकबाल। पेमेंट की अदम अदायगी, एडमिशन्स के बगैर मॉनिटरिंग और तलबा के बेफॉर्म ना होने पर पेमेंट से कटौती पर पेफ पार्टनर्स के सीनियर रहनुमा वासिफ खोसा की क़यादत में प्रेस क्लब जामपुर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें वासिफ खोसा का कहना था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पेफ के 2 फैसलों के बाद भी उन्हें कोई पेमेंट देने को तैयार नहीं। सितंबर अक्टूबर की मुकम्मल पेमेंट अदा की जाए वरना दीगर तहसीलों में एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 2 फैसले हो चुके हैं। एक फैसले में उन्होंने 80% पेमेंट बहाल की, वो भी हमें आज तक नहीं मिली। दूसरे फैसले में जो अभी हुआ है
उन्होंने हमारी 100% पेमेंट बहाल करने का वादा किया, फैसला किया, लेकिन इस वक्त तक हम सुन रहे हैं कि सितंबर की भी जो गुज़श्ता माह गुजर चुका है सितंबर, उसकी भी अभी तक 50% पेमेंट तैयार करके वो बैठे हुए हैं। 100% पेमेंट अब भी वो देने को तैयार नहीं है। बुजुर्ग पार्टनर्स का कहना था कि सरकारी स्कूल्स के बच्चों के अखराजात 4000 फी कस बचा है। उन्हें पैफ 500 रुपए अदा करता है। पैफ के पार्टनर्स के साथ जो वादे किए गए उन्हें पूरा किया जाए। ये पैफ के इदारे तकरीबन पूरे पंजाब के अंदर हुकूमत के लिए ये मुफ्त इदारे चल रहे हैं। हुकूमत के अपने जो अखराजात हैं गवर्नमेंट स्कूलों के, वो 4000 फी बच्चा से कम नहीं है, और हमें ये 500, 550, 600 देकर ये समझते हैं कि हमने कोई तीर मारा है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से पैफ के जायज मुतालिबात तस्लीम करने का मुतालिबा किया है ताकि बच्चों की तालीम मुतासर न हो। कैमरा टीम के हमरा जावेद इकबाल, जामपुर। मियांवाली में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले असातिज़ा की मुस्तकिली के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए। 1358 असातिज़ा को मुस्तकिल किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में 2017 में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले असातिज़ा का देरीना मुतालिबा पूरा हुआ। 1358 असातिज़ा को रेगुलर कर दिया गया है। सीईओ एजुकेशन वजीर आगा ने बताया कि असातिज़ा के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं, जिनमें 462 ESE मेल, 724 फीमेल, 115 SESE मेल और 57 फीमेल्स शामिल हैं। उन्होंने बताया कि असातिज़ा की मुस्तकिली में सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब और डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा की खुसूसी दिलचस्पी शामिल रही। 2017 में ये असातिज़ा भर्ती हुए थे कॉन्ट्रैक्ट पे, उनमें से 1358 टीचर्स को हमने मुस्तकिल कर दिया। सेक्रेटरी साहबा की खुसूसी हिदायत थी मियांवाली के हवाले से, और डिप्टी कमिश्नर मियांवाली इज़्ज़त माब जनाब उमर शेर चट्ठा साहब ने मुझे हिदायत दी, और हमने पूरी टीम को दिन रात लगाकर 1358 असातिज़ा को परमानेंट किया। सीईओ एजुकेशन वजीर आगा ने बताया कि PST और EST की प्रमोशन का प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है। अनकरीब उन असातिज़ा को भी अगले स्केल दे दिए जाएंगे। दर्जा में पढ़े लिखे अफराद को भी जूनियर क्लर्क सतह पर तरक्की दी जाएगी। हमारा जो PST टीचर है, जो हमारी एजुकेशन को बुनियाद फराहम करता है, उसकी प्रमोशन के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह 30 दिन के अंदर अंदर हम 100 से ज्यादा PST टीचर्स को प्रमोशन देने जा रहे हैं। सीईओ एजुकेशन ने मजीद बताया कि अनकरीब तमाम स्कूल्स में सहूलियात के फुकदान को भी पूरा कर दिया जाएगा। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। अभी आपको बताते हैं, बलोच स्टूडेंट्स का काफिला मुल्तान से पैदल लॉन्ग मार्च करता हुआ मियां चन्नू बाईपास पर पहुंच गया। पैदल मार्च के शुरका ने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में बलोचिस्तान के तलबा के लिए स्कॉलरशिप बहाल करने का मुतालबा किया। बलोच स्टूडेंट्स के काफिले में 30 से 35 तलबा शामिल हैं। पैदल लॉन्ग मार्च के सरबराह ने कहा कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में बलोचिस्तान स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप बहाल की जाए। पंजाब की दीगर यूनिवर्सिटीज में मौजूद रिजर्व सीटों के मसाइल हल किए जाएं। उन्होंने बताया कि 40 रोज तक यूनिवर्सिटी के बाहर धरना दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 दिन से पैदल सफर करके मुल्तान से मियां चन्नू पहुंचे हैं। मुतालबे की मंजूरी के लिए इस मार्च को जारी रखते हुए बरास्ता लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे। मुतालबात मंजूर होने तक इस्लामाबाद में धरना जारी रहेगा। रहीमिया खान में खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस, हिफाजती इकदामात और खुद चेकअप करके सेहत का ख्याल रखने की अहमियत को उजागर करने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया माजिद ने लेक्चर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम सिद्दीक। प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया माजिद ने सेमिनार में लेक्चर देते हुए खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर के मर्ज के बारे में आगाही दी। उनका कहना था कि ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए बच्चों को माँ का दूध पिलाया जाए। मुतवाजिन ग़िज़ा ब्रेस्ट कैंसर समेत दूसरी कई बीमारियों से बचाव का बाइस बन सकती है। मुरगन ग़िज़ाओं का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। खवातीन घरों में रहते ही अपना चेकअप खुद कर सकती हैं। हमारा ये सेमिनार था, ये खवातीन में आगाही ही इसी चीज की डेवलप करनी थी कि आप खुद अपना इस तरह से मुआयना कर लें कि अंदाज़ा हो जाए कि कोई मसला तो नहीं डेवलप हो रहा, और उसका जल्द मदावा हो जाए, जल्द आप हॉस्पिटल पहुंच सकें, डॉक्टर से बात कर सकें। क्योंकि देखिए, इसकी प्रिवेंशन यही है कि अर्लियर स्टेज पे ये डिजीज़ पकड़ी जाए। आज के सेमिनार का हमारा मकसद यही था कि हम खवातीन को जो है आगाही दें कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है
اور اس کی آپ نے ارلی ڈائگنوسس یعنی کہ آپ نے اس کی تشخیص کیسے کرنی ہے. جتنی جلد اس کی تشخیص ہوگی اتنی جلدی اس سے آپ کو جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ آپ کا جو ہے وہ 100% ہو سکتا ہے. خواتین میں سب سے زیادہ بریسٹ کینسر کا بڑھنا ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا ہے. بریسٹ کینسر کی بروقت تشخیص سے اس کا علاج ممکن ہے. خواتین گھر میں رہتے ہی خود احتسابی کا عمل اب تشخیص ان کو موت کے منہ سے بچا سکتی ہے. کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان. اور ابھی آپ کو بتاتے ہیں ملتان میں نون چوک کی چکن مٹن کڑاہی کے چرچے جو کھائے بار بار آئے. دکاندار کی جانب سے کورونا SOPs کا بھی مکمل خیال رکھا گیا ہے. رپورٹ کر رہی ہیں وسیم شہزاد. ملتان میں نون چوک سے اٹھنے والا دھواں اور کھانوں کی خوشبو شہر اولیا کے باسیوں کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے. مٹن کڑھائی کے شوقین افراد کا کہنا ہے کہ نون چوک سے کڑھائی کھانے کے بعد دن بھر کی تھکاوٹ تو دور ہوتی ہی ہے، ساتھ ہی دوستوں کے ہمراہ ذہن بھی تر و تازہ ہو جاتا ہے. دوستوں کو کہے اس ذائقے کو مزید ناقابل فراموش بنا دیتے ہیں. تو فری ٹائم میں آ جاتے ہیں یہاں پہ کھانا وغیرہ کھانے کے لیے. بہت اچھا ٹیسٹ ہے ان کا اور ماشاءاللہ بہت زبردست ہوتا ہے. فری ٹائم میں یہاں ریلیکس ہونے کے لیے آ جاتے ہیں. دکاندار کا کہنا ہے کہ چکن اور مٹن کو سب سے پہلے ابالا جاتا ہے، جس کے بعد مسالوں کا تڑکا لگایا جاتا ہے. دیسی گھی اور مکھن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. کورونا کے ریسیپیز کا بہت خیال رکھتے ہیں. ماسک، سینیٹائزر کا استعمال کر رہے ہیں اور دیسی مکھن کڑھائی ہم اسپیشل مکھن سے، اسپیشل مسالہ جات، خالص مسالہ جات سے تیار کرتے ہیں. لوگ ہمارے سے دور دراز سے کھانا کھانے آتے ہیں ادھر. دکاندار کا دعویٰ ہے کہ ان کا معیار 4 اشروں سے منفرد ہے. یہی وجہ ہے کہ دیسی مٹن اور چکن کڑھائی ملتانیوں کی پسندیدہ ڈش بن چکی ہے. شام ڈھلتے ہی شہر اولیا کے باسی اپنے دوستوں کے ہمراہ بہترین وقت گزارنے کے لیے مختلف ہوٹلز کا رخ کرتے ہیں، جہاں پر مٹن کڑھائی کے ساتھ غذائیت کے ساتھ ساتھ یادگار لمحات بھی گزار رہے ہیں. کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان.